धन्यवाद अंबालिका मैडम. हरि ओम एंड नमस्ते ऑल. ओम गंग गणपते नमः. ओम सम सरस्वते नमः. ओम गुं गुरुभ्यो नमः. सर्वप्रथम मैं आदरणीय मेरे गुरुवर्य श्री पांडे सर, आदरणीय श्री मराठे सर और गोखले सर, इनको मैं नमन और प्रणाम करती हूँ. और मेरे कलीग्स एंड ऑल ऑफ यू, आप सभी को हरि ओम एंड नमस्ते. So, we are in the second week of a Kalaganana workshop. And since last week, we are getting the knowledge of Kalaganana, which is one of the part of the treasure in India. Because in the study of human mind, in the study of ourselves, India occupies a place second to no other country. Whatever sphere of human mind, you may select for your special study, whether it may be religion, whether it may be language or mythology or philosophy, you have to come to India, because some of the most valuable and the most instructive materials in the history of a man are treasured up in India and only in India. This is what Max Muller said. So we are lucky and we are treasured up with so many uh, uh, with so many things which is found in only in India, not in other country. India means Bharat, and we are learning the Bharatiya Kalaganana. So this is a one part of the treasure what we are learning. I find Bharatiya Kalaganana is a very important subject by every means, because this treasure which we got in the India, if you know the Kalaganana, we can apply this Kalaganana to each and every aspect, to each and every subject. Also, you are learning the Kalaganana from the last weeks. So you also find that from the first week, we have started for the Srushti Nirmiti, which Mananiya Pandey sir has explained us. And it is very interesting how Srushti became Nirmiti, happened to Nirmiti. And second week, we are learning the Panchanga. Panchanga is also a very important part for the Kalaganana. So find this treasure which we are sharing since the last week, and we are going to share to the coming weeks. It is a very important part, and each and every person should know the Bharatiya Kalaganana, because this treasure, only we are having this treasure. Another country don't have this treasure. So we'll continue the sharing of treasure of Bharatiya Kalaganana. Now we will proceed. आवाज येत नाही. मॅडम तुम्ही म्यूट आहे. Sorry. Okay. So now I'm audible? Fine? Okay. So from the last week, we are sharing the treasure of Bharati Kalganana. And as I said, it is a very important part of our India, of our culture. And each and every person should know the Bharatiya Kalganana. Bharatiya Kalganana, it is not for a single person. It is for the each and every person. If you know the Bharatiya Kalganana, if you know the Kalganana, then you can apply this logic for regular basis. How? If you know how the सृष्टि can निर्मित, how the सृष्टि can happen, सृष्टि की निर्मिति कैसी हुई है, ये जानकारी
बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो हमें अगर पता है तो हम वी कैन शेयर दिस नॉलेज टू ईच एंड एवरी पर्सन. एंड इफ यू नो द काल गणना, as from this week we are learning the Panchanga, and Panchanga is a very important part in the Kal Ganana. So if you know the Panchanga, you can guide, you can use in daily basis and is occasional basis, and the special days also we can use the Panchanga. So again we will start up with the Bharati Kal Ganana, and the today's subject is Yoga and Karan. So till yesterday we have learned about the Panchanga Pach Anga, that is a Tithi, Var, Nakshatra, Yoga and Karan. First we have learned the Tithi, which Mananiya Pandey sir has explained us what is a Tithi, then Var, then Nakshatra. So till yesterday whatever we have seen or whatever we have become taught, that is if you concluded it, then we will come to the some key points. What is that key points? Key points is तिथि व करण ये काल के विभाग है, नक्षत्र स्थल विभाग है, योग गति संयोग मापक है. तो जब हम कल तक तिथि वार और नक्षत्र ये पंचांग के 5 अंग हमने देखे हैं, तब अगर हमें कीवर्ड्स मिलते हैं या आगे हमें की पॉइंट्स मिलते हैं, तो हमें कौन से 3 की पॉइंट्स मिलते हैं? वो 3 की पॉइंट्स ये है कि तिथि व करण ये काल के विभाग है, नक्षत्र ये स्थल विभाग है, योग ये गति संयोग मापक है. Then how we will get these 3 points? When we are learning about the tithi, which Mananiya Pandey sir has been explained to us, that तिथि ये काल मापन का आसान व नैसर्गिक साधन है. आकाशस्थ स्थित चंद्र की कला, स्थान और तारे, इन सब का सानिध्य समझ के आज कौन सा दिन है ये हम समझ सकते हैं. चंद्र और सूर्य ये कालदर्शक हैं, और चंद्र सूर्य की वजह से ही हम कालमापन व काल स्वरूप जान सकते हैं. जब चंद्र सूर्य एकत्रित होते हैं, माने जब सूर्य के तेज के सामने चंद्र का तेज ना दिखे, तो उसे हम अमावस्या कहते हैं. I am not going the definition, theoretical or calculated definition about the Amavasya or geometrical definition about the Amavasya. I am giving the simple definition about the Amavasya because we have to find out this. We found these 3 words. For that, I am giving the basic definition of Amavasya. So, what is that definition? जब चंद्र सूर्य एकत्रित आते हैं, मतलब जब सूर्य के तेज के सामने चंद्र का तेज ना दिखे, उसे हम अमावस्या कहते हैं. और फिर से सूर्य के तेज के सामने चंद्र पूर्णतः दिखने के लिए अप्रोक्सीमेटली 30 सूर्योदय का काल लगता है. अब जब चंद्र व सूर्य से 12 अंश अंतर होता है, तब अनुक्रमे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी इत्यादि तिथियां होती है. तिथि ये अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है. जब हम इस तिथि के 2 भाग करते हैं, तब हमें करण प्राप्त होते हैं. तो तिथि व करण ये काल विभाग हुए. जैसे एक काल हमें दिया गया है कि 8 दिन का ये काल है, बट 8 दिन के काल में जब तक हम विभाग नहीं करेंगे कि ये प्रथमा है, ये द्वितीया है, ये तृतीया है, ये चतुर्थी, ये पंचमी है, तब तक हमें उस काल के विभाग नहीं समझेंगे. सो तिथियों के होने से हमें काल के विभाग मिलते हैं, और इसी तिथि के जब हम 2 भाग करते हैं, तब हमें करण के प्राप्त होती है. इसीलिए तिथि व करण ये काल विभाग है. Then we will get the key point, that is the nakshatra is the sthala vibhag. So how nakshatra is a sthala vibhag? This is an important point. Yesterday only Ashish sir taught us about the nakshatra. What is the nakshatra? Naksharati iti nakshatra. जो नक्षत्र, हम नक्षत्र में नहीं जाएंगे. So नक्षत्र ये स्थल विभाग है. So we have seen about the nakshatra yesterday only. तो नक्षत्र ये स्थल विभाग कैसे हुआ? जब हम तिथि के बारे में सोचते हैं, तब हमें सूर्य और चंद्र इसका अंतर से काल विभाग और 12 अंश ये काल हमें पता चलता है. तो तिथि में सूर्य और चंद्र दोनों का महत्व है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द नक्षत्र स्थल विभाग, तो नक्षत्र में चंद्र इंपॉर्टेंट है, बिकॉज
चंद्रमा का भ्रमण दो तरह से होता है, एक नाक्षत्रिक भ्रमण और एक तिथि भ्रमण। और चंद्रमा का नाक्षत्रिक भ्रमण से ही हमें राशि का ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब yesterday only we have heard that आशीष सर was telling us कि अगर हमें नागपुर से रामटेक जाना है तो we know our destination where we have to go, but we have to find out the transportation. That still we know that how we'll go, that is up to you. तो फिर नक्षत्र से when move from the moon moment we will get the Rashi and the nakshatra. And what is a nakshatra? बहुत तारे उसमें होते हैं और वो एक स्थल होता है। So as a moon will move according to nakshatra we will get the Rashi. So nakshatra ये स्थल विभाग है। This is what henceforth. और योग गति सहयोग मापक है। So how योग is a गति सहयोग मापक? So योग अभी हम सविस्तर से चर्चा करेंगे, but why योग is a गति सहयोग मापक? काल ये गतिशील तत्व होने के कारण चंद्र और सूर्य इनके दैनंदिन गति का अंतर काल पर निर्धारित होता है। रोज सूर्य 1 अंश भ्रमण करता है तो चंद्र 13 अंश भ्रमण करता है। कुल मिलाकर अंतर 13 अंश 20 कला होता है। इस तरह से सूर्य व चंद्र का भ्रमण निर्धारित काल गति में होता है। तो ये जो काल की गति है उससे एक योग हमें मिलता है। तो ये योग ये गति संयोग मापक होता है। मतलब when we are learning about the Panchanga, when we are learning about the Tithi, Var, Nakshatra, Yoga, Karan, so what we got the 3 important points of the Tithi, Karan, Nakshatra and the Yoga. As I explained you why Tithi and Karan is a Kal Vibhag, as I explained you why Nakshatra is a Sthal Vibhag, and when योग happen जब उनके गति पे सूर्य और चंद्र की गति का एक स्पेसिफिक अंतर होता है तब एक योग प्राप्त हमें होता है। इसलिए योग ये गति संयोग मापक है। Then we will come about the var. What is a var? वार में देखा जाए तो नैसर्गिक काल गणना से ज्यादा हम व्यवहारिक तौर पे वार का उपयोग ज्यादा करते हैं। So var in regular basis, in a व्यवहारिक basis, var is equally important. So this is what we got the key points till yesterday what we have seen. Now we will proceed to the yoga. So what is a yoga? As I explained you right now, what 3 points we got about the sthala, yoga, sayyap and all. So what is a yoga? सूर्य की दैनंदिन मध्यम गति भोग काल 59 कला 8 विकला होता है। चंद्र की मध्यम गति भोग काल 790 कला 35 विकला होता है। जब सूर्य और चंद्र का भोग काल का अंतर 800 कला माने 13 अंश 20 कला होता है तब एक योग बनता है। सो अगर हम बेसिक डेफिनेशन योग की देखा जाए तो सूर्य व चंद्र की विशेष दूरियों की स्थितियों को योग कहते हैं। इस तरह हम योग की संज्ञा या योग कह सकते हैं। जैसे सूर्य की दैनंदिन मध्यम गति, चंद्र की दैनंदिन मध्यम गति और सूर्य चंद्र का भोग काल जब 800 कला माने 13 अंश 20 कला जब होता है तब एक योग बनता है। मतलब सूर्य व चंद्र की विशेष दूरियों की स्थितियों को योग कहते हैं। अभी ये कितने प्रकार के योग हैं? तो वी हैव 27 योग। विष्कुंभ प्रीतिर आयुष्मान सौभाग्य शोभनस्तथा अतिगंडः सुकर्मा च धृतिः शूलस्तथैव च गंडो वृद्धिरधेवे चैव व्याघातो हर्षणस्तथा वज्र सिद्धि व्यतिपातो वरीयाण परिघः शिवः सिद्धः साध्यः शुभ शुक्लो ब्रह्मेन्द्रो वैद्युति क्रमात् 27 अगस्तो कुर्य नामक संदक फलम। मतलब विष्कुंभ प्रीति आयुष्मान सौभाग्य शोभन अतिगंड सुकर्मा धृति शूलः गंडो वृद्धि ध्रुव व्याघात हर्षण वज्र सिद्धि वतिपात वरीयाण परिघ शिव वरीयाण परिघ शिव सिद्ध साध्य शुभ शुक्लो ब्रह्मेन्द्रो ब्रह्म इंद्र वैद्युति
सप्तविंशित ऐसे 27 योग हमें प्राप्त होते हैं, उसको विष्कुंभ योगादि कहते हैं। This is a 27 yoga, whatever I explain you right now, विष्कुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभना इत्यादि व्यघृति तक। अब योगों के स्वामी क्या है? योगों के स्वामी है विष्कुंभ यम। So when we are learning about the yoga, so there is a one specific underline and the bold sentence we have to always remember. What is this? What is that sentence about the yoga? That sentence is yoga अपने नाम के अनुसार फल देते हैं। Whenever we learn about the yoga, so this sentence you have just remember, you just underline and bold it. What is that sentence? The sentence is योग अपने नाम के अनुसार फल देते हैं। नाम के अनुसार फल देते हैं मतलब क्या? Some name are find us very sweet. Some name we find us very disturbing. Like that, when you are talking about the योग के जो नाम आते हैं, that name itself indicates how it will. So हमारे ग्रंथों में ये स्टेटमेंट लिखा है कि योग अपने नाम के अनुसार फल देते हैं। So like that also, when we are see the yoga and their swami, when you see the Vishkumbha yoga, swami is a yama. So normal person only calculate it if the yoga is a Vishkumbha and the swami is a yama, then there is some problem, means ये योग अशुभ होता है। If you pronounce or if you hear about the yoga Preeti and the swami is a Vishnu, so normal person get recollect, think it that the yoga Preeti is pronounced very sweet and swami is a Vishnu. So I am giving you the simple definition how you understand about the yoga. So according to that, this is a yoga and this is a swami. Like Vishnuga Yama, Preeti Vishnu and Indra Pitar and Vedruti Dati. अभी इस योग में 9 योग जो होते हैं वो अशुभ होते हैं, उसको वर्जनीय योग और अशुभ योगों में के ताज्यकाल कहते हैं। जैसे हमने योग समझा, योग की डेफिनेशन जानी, उसके बाद में विष्कुंभ आदि 27 योग हमने देखे, उसके बाद में योगों के स्वामी हमने देखे, और योगों के योग जानते हुए द बोल्ड एंड अंडरलाइन स्टेटमेंट ये भी हमने देखा, योग अपने नाम के अनुसार फल देता है, और उसका एक्सप्लेनेशन शॉर्ट और सिंपल वे में हमने देखा। तो उसमें कौन से 9 योग है जो अशुभ समझे जाते हैं? वो 9 योग है विष्कुंभ, अतिगंड, शूल, गंड, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, परिध, वैघृति, ये 9 योग अशुभ समझे जाते हैं। अब जब ये 9 योग अशुभ समझे जाते हैं तो उसमें कौन सा काल है जो हम अशुभ समझते हैं? क्योंकि योग तो है इस टाइम पे स्टार्ट होके उस टाइम तक ये योग है, तो ये हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन 9 योगों में से ऐसा कौन सा काल हमने वर्ज्य करना चाहिए। सो वैघृति और व्यतिपात में संपूर्ण काल हमें वर्ज्य करना चाहिए। परिघ योग का पूर्वार्ध का आधा काल हमें वर्ज्य करना चाहिए। विष्कुंभ और व्रज की प्रारंभ की 3 घटी हमें वर्ज्य करना चाहिए। व्याघात की प्रारंभ की 9 घटी, शूल की प्रारंभ की 5 घटी, गंड और अतिगंड की प्रारंभ की 6 घटी, ये सभी शुभ कार्यों में त्याज्य है। So question is arise, why should we know this thing? Because when we are learning the Panchanga, when we want to use the Bharati Kalganana in our daily basis, so you should know what is a yoga. And when you know what is a yoga, then you should apply this logic to daily basis. So when you know the yoga, when you know the Vishkungaji 27 yoga, and when you know that from that 27 yoga, this 9 yoga is not good for the Shubha Karya, it is Ashubh for the Shubha Karya, then it is a mandatory, you should know कि उस 9 योग में से कौन सा काल ये वर्ज्य करना चाहिए और कौन सा काल हमें लेना चाहिए। तो वर्जनीय योग में हमने क्या देखा, तो वैघृति और व्यतिपात का संपूर्ण काल हमें वर्ज्य करना है। परिघ योगों का पूर्वार्ध का आधा काल हमें वर्ज्य करना है। विष्कुंभ और वज्र की प्रारंभ की 3 घटी, व्याघात की प्रारंभ की 9 घटी, शूल की प्रारंभ की 5 घटी, गंड और अतिगंड की प्रारंभ की 6 घटी, ये सभी शुभ कार्यों में त्याज्य है।
Now we will come to the because Saraswat ji, can you mute your mic please, if you don't mind? Thank you so much. Can you mute yourself please? Okay, now we will come to the point that we have seen the Vishkumbhadhi Yoga. Then we will let's see the Anandadi Yoga. So as we see the Vishkumbhadhi 27 Yoga, so there is a 20 Yoga, Anandadi Yoga is there. That count is a 28 count. As we have seen about the Vishkumbhadhi Yoga, that is 27, and we have seen the Varja Kal. कौन से काल हमें उसमें वर्ज करना चाहिए, उसी तरह से आनंदादि योग हमें अभी देखने हैं. तो आनंदादि योग कितने हैं? ये 28 आनंदादि योग है. और एज इफ यू सीन टू दिस चार्ट, योग आनंद रविवार अश्विनी, सोमवार मृग, मंगलवार आश्लेषा, बुधवार हस्त, गुरुवार अनुराधा, शुक्रवार उत्तरा आषाढ़ा, शनिवार शततारका, फल है अर्थसिद्धि. मतलब योग जब आनंद होता है, फॉलोज विद दिस नक्षत्र एंड फॉलोज विद दिस वार, तो फल हमें क्या प्राप्त होती है? अर्थ सिद्धि. वाइस वर्षा, अगर शनिवार शुक्रवार या रविवार से शनिवार तक अगर ये नक्षत्र आता है और आनंद योग आता है, तो हमें फल मिलता है अर्थ सिद्धि. इसी तरह से ये 28 योगों के फल हमें मिलते हैं. जैसे 13वां मानस, पद्म, लुंब, उत्पात, मृत्यु, कारण, सिद्धि, शुभ, अमृत, मुसलह, अनंतक, राक्षस, चर, सुस्थिर, वर्धमान. सेम 28वां अगर हम योग देखते हैं आनंदादि योग, द योग इज वर्धमान. अगर रविवार को रेवती नक्षत्र, सोमवार को रोहिणी नक्षत्र, मंगलवार को पुष्य नक्षत्र, बुधवार को उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद और शनिवार को धनिष्ठा, तो उसका फल प्राप्ति क्या मिलता है हमें? उसका फल प्राप्ति है सुमंगल. इस तरह से हमने योग की परिभाषा समझी, योग का कैलकुलेशन समझा है, और विष्कुम्भदादी योग कौन से 27 होती है वो समझे है, और कौन से कार्य हम किस तरह से कर सकते हैं, कौन से कार्य कौन से इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, उसका काल भी हमने देखा है. Then we will come to the करण. What is the करण? चंद्र के 12 अंश अंतर को एक तिथि कहते हैं. तिथ्यर्ध करणम, अर्थात चंद्र के 6 अंश अंतर से एक करण होता है. एक तिथि में 2 करण होते हैं, एक पूर्वार्ध में तथा एक उत्तरार्ध में होता है. कुल 11 करण होते हैं. 2 प्रकार के करण मतलब चर करण और स्थिर करण होते हैं. हमने इसके पहले ही करण के बारे में फर्स्ट स्लाइड में डेफिनेशन आई हैव एक्सप्लेन टू यू कि चंद्र से तिथि फॉर्म होती है और तिथि के आधे भाग को करण ऐसे संबोधित किया जाता है. तो अर्थात चंद्र के 6 अंश के अंतर से एक करण होता है, और उसके 2 प्रकार, ऐसे 11 करण होते हैं, और उसके 2 प्रकार होते हैं, एक स्थिर करण और एक चर करण. अब स्थिर करण और चर करण कौन से होते हैं? बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वाणिज, विष्टि, ये चरकरण है. स्थिर करण कौन से है? शकुनी, चतुष्पद, नाग, किस्कुंद, ये चरकरण है. देन वी विल कम टू द स्वामी कौन से है, करण के स्वामी कौन से है? बव का इंद्र, बालव का ब्रह्मा, कौलव का मित्र, तैतिल का सूर्य, गर का भूमि, वाणिज लक्ष्मी, और इसी प्रकार किस्कुंद का वायु, ये स्वामी है, ये करण के स्वामी है. अब जब हम दो करण जान गए हैं, वन इज अ पार्ट इज अ स्थिर करण, सेकंड इज अ चर करण, तो हमें ये करण का काल भी जानना चाहिए. क्योंकि जैसे हमने योगों के बारे में पढ़ा, योग कैसे फॉर्म होता है, योग का कौन सा काल हमें लेना चाहिए, कौन सा काल हमें लेना नहीं चाहिए, उसी तरह करण के मामले में कि स्थिर करण कौन से पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में स्थिर करण होते हैं. जैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी, अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद, अमावस्या के उत्तरार्ध में नाग, और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किस्कुंद करण होते हैं. ये हो गया स्थिर करणों का काल.
अभी चरकरणों का काल कौन सा होता है? तो शुक्ल प्रतिपद के उत्तरार्ध से प्रारंभ होके संपूर्ण मास में 8 बार चरकरण होते हैं। चरकरण में विष्टिकरण अशुभ होता है। चरकरण में विष्टिकरण अशुभ होता है। Again, while we are learning about the Karan, you can bold and underline this statement. चरकरण में विष्टिकरण अशुभ होता है, because in regular basis we will use this विष्टिकरण and we will always use to talk about the विष्टिकरण. How it is? Because पंचांग में भद्रा प्रवृत्ति व भद्रा निवृत्ति ऐसे करके विष्टिकरण को संबोधित किया जाता है और विष्टिकरण को ही भद्रा कहते हैं। और भद्रा मतलब विष्टि सब शुभ कार्य में वर्ज है। तो हम भद्रा बहुत बार सुनते हैं। जब भी हम भद्रा सुनते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर रक्षाबंधन हो तो हम हर बार सोचते हैं कि गुरुजी राखी कब बांधे, क्योंकि भद्रा यहाँ पे खत्म हो रही है, भद्रा यहाँ तक है। या कोई भी शुभ कार्य हम करना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि भद्रा कहाँ तक है। या जब भी हम पंचांग देखते हैं तब हम देखते हैं कि भद्रा कहाँ शुरू हो रही है और कौन से वक्त पे खत्म हो रही है। तो व्हाट इज दैट भद्रा? So again, when we learning about the Panchang, when we learning about the yoga, when we learning about the Karan, so you should know the exactly bold and the underlined point about the yoga and the Karan. So what is this Bhadra? और ये भद्रा काल क्या होता है और भद्रा काल कौन सा काल ये शुभ कार्य के लिए वर्ज होता है? क्योंकि we always heard here and there कि यहाँ से यहाँ तक भद्रा है, तो हम ये भद्रा खत्म होने के बाद ये शुभ कार्य का आरंभ करते हैं। तो ये भद्रा यानी क्या है और पंचांग में इसको क्या कहते हैं? तो पंचांग में इसको कहते हैं भद्रा प्रवृत्ति व भद्रा निवृत्ति, ऐसे करके इसको संबोधित किया जाता है। अब जब हम भद्रा जानते हैं तो भद्रा के नाम और किस नाम से भद्रा जाने जाती है? तो कराली, नंदिनी, रौद्री, ध्रुमुखी, मिश्री, वैष्णवी और हंसी, इस नाम से भद्रा जानी जाती है। ये भी भद्रा के नाम है। तो भद्रा मुख और भद्रा पुच्छ क्या है? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द भद्रा, तो भद्रा में कुछ काल जब संपूर्ण भद्रा होती है तो भद्रा में का कुछ काल ये अशुभ होता है और कुछ काल जिसे हम भद्रा पुच्छ कहते हैं वो शुभ कार्य के लिए हम कुछ हद तक ले सकते हैं। उसको हम बोलते हैं भद्रा मुख और भद्रा पुच्छ। तो भद्रा पुच्छ उत्तरार्ध की 3 घटिया माने 1 घंटा 12 मिनट, ये काल कुछ प्रसंगों में कुछ हद तक शुभ माना जाता है। और भद्रा मुख की पूर्वार्ध की 5 घटिया माने 2 घंटे, ये शुभ कार्य में त्याज्य मानी जाती है। मतलब भद्रा मुख और भद्रा पुच्छ की 5 घटिया माने 2 घंटे और भद्रा मुख की 5 घटिया माने 2 घंटे और भद्रा पुच्छ की 3 घटिया माने 1 घंटा 12 मिनट, ये काल कुछ प्रसंगों में कुछ हद तक शुभ माना जाता है। सो कुछ प्रसंगों में कुछ हद तक शुभ माना समझा जाता है। Here is some contradictory statement, like some acharya consider some bhadra period is a good for some occasions, and some acharya said this bhadra period is not good for some occasion. But we will not go to that contradictory statement. We will follow and we will stick with this the grantha whatever we have seen here, that भद्रा पुच्छ के उत्तरार्ध की 3 घटिका माने 1 घंटा 12 मिनट, ये काल कुछ प्रसंगों में कुछ हद तक शुभ माना जाता है। जब हम भद्रा पुच्छ और भद्रा मुख और भद्रा पुच्छ देखते हैं तो उसका काल जानना भी हमें बहुत जरूरी है। तो भद्रा मुख व भद्रा पुच्छ घटिका क्या होती है? We know about the शुक्ल पक्ष and the कृष्ण पक्ष. We have seen about it कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, and here everyone knows what is the शुक्ल पक्ष and the कृष्ण पक्ष. So when we are talking about the भद्रा मुख and the भद्रा पुच्छ घटिका, तो हमें कौन से काल में क्या करना चाहिए और क्या त्याग करना चाहिए? So तिथि शुक्ल पक्ष में अगर चतुर्थी होती है और उसका भाग उत्तरार्ध होता है, पाद पहला होता है और भद्रा घटिका 2 घंटे, मतलब पहली 5 घटिका और भद्रा पुच्छ में घटिका आखिरी 3 मतलब 1 घंटा 12 मिनट हमें नहीं लेनी है। I'll again explain you how भद्रा मुख और how भद्रा पुच्छ will work.
लाइक शुक्ल पक्ष में हम चतुर्थी तिथि ले रहे हैं, उसका भाग है शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि में का भाग है उत्तरार्ध, पाद है एक। हम जैसे विष्टि को 4 भाग में डिवाइड करते हैं, तो एक को पाद कहते हैं, 4 भागों में से फर्स्ट पाद, सेकंड पाद, थर्ड और फोर्थ पाद ऐसे। तो शुक्ल पक्षी की चतुर्थी में उसके उत्तरार्ध में पहले पाद में पहली 5 घटिका भद्रा मुख होती है, मतलब पहले 2 घंटे भद्रा मुख होता है। चौथे पाद में आखिरी 3 घटिका मतलब 1 घंटा 12 मिनट भद्रा पुच्छ होता है। तो जैसे हमने कहा है, भद्रा मुख का शुभ कार्य में त्याग करना चाहिए और भद्रा पुच्छ का ग्रहण करना श्रेष्ठ होता है। तो जैसे हमने तिथि देखी कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की उत्तरार्ध में पहले पाद में पहली 5 घटिका मतलब 2 घंटे और चौथे पाद में आखिरी 3 घटिका मतलब 1 घंटा 12 मिनट। तो भद्रा मुख में मतलब पहले 5 घटिका में 2 घंटे में हमें शुभ कार्य का त्याग करना चाहिए, और भद्रा पुच्छ में जब आखिरी की 3 घटिका मतलब 1 घंटा 12 मिनट, उस समय भद्रा पुच्छ में कोई भी शुभ कार्य ग्रहण करना श्रेष्ठ होता है। इसी तरह कृष्ण पक्ष की अगर तृतीय हम लेते हैं तो कृष्ण या सप्तमी हम लेते हैं, कृष्ण पक्ष की सप्तमी के पूर्वार्ध में तीसरे पाद में पहली 5 घटिका मतलब पहले 2 घंटे भद्रा मुख है, तो उस 2 घंटे में हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, और आखिरी 3 घंटे मतलब 1 घंटा 12 मिनट भद्रा पुच्छ होती है, उस घंटे में कोई भी कार्य का हमें ग्रहण करना चाहिए। सो दिस इज भद्रा मुख व भद्रा पुच्छ, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग द करण, because when we again I'll repeat the same sentence. If you are learning the Kalaganana, if you are learning the Panchanga, then you should know and you should calculate it by yourself, and you should know and you should tell another one also. What is a Bhadra Mukha and Bhadra Puchha? Which ghatika you had to take and which ghatika you had to avoid. So this is a Bhadra Mukha और भद्रा पुच्छ चार्ट। तो इस तरह से हम भद्रा मुख और भद्रा पुच्छ का कैलकुलेशन करके उत्तरार्ध पूर्वार्ध कितनी घटिका त्याज्य करनी है, कितनी घटिका लेने हैं, ये हम समझ सकते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ लिखा है कि भद्रा मुख का शुभ कार्य में त्याग करना चाहिए और भद्रा पुच्छ का ग्रहण करना चाहिए, वो श्रेष्ठ रहता है। अभी हमने जब करण पढ़े हैं तो हमने 7 करण और 4 करण ऐसे करे हैं, उसमें भद्रा जानी है। अभी इस करण में कौन से कार्य हमने करने चाहिए, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर गर करण होता है तो हमें खेती, बीज और घर ऐसे कार्य करने चाहिए। वाणिज्य करण होता है तो व्यापार करना चाहिए। विष्टिकरण होता है तो अभिघात और विष संबंधित कार्य करने चाहिए। सो अगेन देयर इज अ क्वेश्चन अराइज कि अगर विष्टिकरण है माने भद्रा है, तो भद्रा तो रहने वाली है, भद्रा तो आने वाली है। सो कैन वी स्टॉप ऑल द वर्क्स इन दैट भद्रा पीरियड और इन द विष्टिकरण? ऑफ कोर्स नॉट। वी हैव सीन ऑलरेडी कि भद्रा पुच्छ में हम कार्य कर सकते हैं, बट अगर होल डे भद्रा है और ये जो घटिया हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, 2 घटिया और भद्रा मुख है, तो उसमें कौन से कार्य करना चाहिए, क्योंकि भद्रा तो आने वाली है। तो उस विष्टि में, उस भद्राकरण में अभिघात और विष संबंधी के सभी कार्य हम कर सकते हैं। शकुनीकरण हो तो उसमें औषधि और मंत्र संबंधी के कार्य हम कर सकते हैं। चतुष्पद में गाय, पितर, देव, राज्य संबंधी के कार्य हम कर सकते हैं। नागकरण में हरण मतलब अतिकरण, हरण मतलब नॉट अ किडनैपिंग, एनी काइंड ऑफ द अतिक्रमण जो हम करते हैं, और भाग्यहीनता संबंधी के कार्य हम नागकरण में कर सकते हैं। किष्किंधकरण में हम कौन से कार्य कर सकते हैं? विच कार्य वी कैन परफॉर्म इन द किष्किंधकरण? दैट इज अ शुभ, वृद्धि, पुष्टि, मांगलिक, सिद्धि संबंधित कार्य हम किष्किंधकरण में कर सकते हैं। So from this chart we will come to know which कार्य we can perform
इन विच करण, लाइक गर करण में हम खेती बीज घर, वाणिज्य में व्यापार, विष्टि में अभिघात और विष संबंधित कार्य, शकुनी में औषधि और मंत्र संबंधित कार्य, चतुष्पद में गाय पितर देव और राज्य संबंधित कार्य, नाग में हरण अतिक्रमण और भाग्यहीनता संबंधित कार्य, और किष्किंध में शुभ वृद्धि पुष्टि मांगलिक और सिद्धि संबंधित कार्य हम कर सकते हैं। नाउ वी विल कम टू द पॉइंट, शुभ विष्टि कौन सी है, मतलब विष्टि होते हुए, मतलब भद्रा होते हुए भी हम कौन से कार्य ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें भद्रा का दोष नहीं लगता है। तो ऐसी कौन सी शुभ विष्टि है, तो विष्टि समय मतलब भद्रा के समय जात कर्म संस्कार, अदला बदली विनिमय, सदाशिव और पार्वती की पूजा, होम कार्य, श्रावणी, हुताशयनी मतलब यज्ञ अग्नि, जलाशय और प्रतिष्ठा, पाक यज्ञ, इतने का इस व्रत क्रम से उपस्थित भद्रा शुभ होती है। मतलब इस व्रत में उपस्थित भद्रा ये शुभ होती है। दिस इज अ शुभ विष्टि, मतलब शुभ भद्रा। अब भद्रावास ज्ञान, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वी हैव सीन द मोमेंट ऑफ द चंद्र एंड फ्रॉम द चंद्र वी विल गेट द राशि एंड द नक्षत्र। तो भद्रा का वास कौन से राशि में होता है और उसका वास, भद्रावास कौन से लोक में होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इससे हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जैसे भद्रावास मीन मेष सिंह और वृश्चिक का चंद्रमा हो तो भद्रावास स्वर्ग लोक में होता है। कन्या तुला धनु और मकर का चंद्रमा हो तब भद्रावास पाताल लोक में होता है। कर्क कुंभ वृषभ और मिथुन का चंद्रमा हो तो भद्रा मृत्यु लोक में भद्रा का वास होता है। तो स्वर्ग में भद्रावास हो, अगर मीन में सिंह और वृश्चिक में भद्रावास हो और स्वर्ग में लोक में भद्रा हो तो उसकी शुभ प्राप्ति होती है। कन्या तुल धनु और मकर में चंद्रमा हो और भद्रावास पाताल लोक में हो तो धन प्राप्ति होती है। कर्क कुंभ वृषभ और मिथुन इस राशि में चंद्रमा हो तो भद्रा मृत्यु लोक का वास होता है, उसमें नाश की प्राप्ति होती है। यानी अगर वी हैव सीन all the point about the yoga and current and we have underlined some points and we have remembered that point that will be very helpful for us. So अभी तक हमने पंचांग के 5 अंग देखे, तिथि वार नक्षत्र योग और करण। तो अभी जब हमने पंचांग के 5 अंग देख लिए हैं तो इसका हम कैसे यूज करेंगे और मुहूर्त शास्त्र में दिस पंचांग के 5 अंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमें उदाहरणार्थ देखना हो तो जैसे यहाँ पे विवाह मुहूर्त का एक उदाहरण लिया है। पांड्या सर एक्सप्लेन अस अबाउट द तिथि, अंबालिका मैन एक्सप्लेन अस अबाउट द वार, आशीष सर एक्सप्लेन अस अबाउट द नक्षत्र, and today we have seen about the yog and the karan. So yog and the karan. So when you come to know all these पंचांग 5 अंग, जब हमें ये पंचांग के 5 अंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं, तो प्रैक्टिकली इसका यूज हम कैसे करेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हम जब कुछ सीखते हैं तब उसका हम उपयोग करते हैं तो इट विल बी वेरी हैप्पीली, वी विल गेट वेरी हैप्पीनेस अबाउट इट। सो जब हम तिथि वार नक्षत्र योग और करण इन सब के बारे में जब जान चुके हैं, तब अगर उदाहरणार्थ हम विवाह मुहूर्त लेते हैं तो विवाह के लिए शुभ महीने माघ फाल्गुन वैशाख ज्येष्ठ ये उत्तम है, मार्गशीर्ष कार्तिक आषाढ़ पोष चैत्र ये मध्यम है, शुक्ल पक्ष श्रेष्ठ कृष्ण पक्ष मध्यम है। ये एक नॉर्मल मास है जो विवाह के लिए शुभ हम माने जाते हैं। सो वी विल स्टार्ट अप विद द पंचांग 5 अंग which we have seen earlier. What is that? That is a तिथि। तिथि में विवाह मुहूर्त में कौन सी तिथि शुभ मानी गई है? शुक्ल द्वितीया से कृष्ण दशमी तक उत्तम तिथि, कृष्ण एकादशी से कृष्ण त्रयोदशी तक मध्यम तिथि, कृष्ण चतुर्दशी से कृष्ण पूर्णिमा वर्ज तिथि, शुक्ल एक क्षय तिथि और वृद्धि तिथि। हमने क्षय तिथि और वृद्धि तिथि के बारे में भी देखा है। तो जब हम उदाहरण देखते हैं तो ये तिथियां जब हम देखेंगे, बिकॉज
कालगणना में ऑलरेडी वी हैव सीन अबाउट द तिथि। जब हम ये तिथियां देखेंगे तो वी आर गेट रिकलेक्ट कि यस ये तिथि हमने देखी है, ये तिथि हमें एक्सप्लेन की गई है, हमें पता है कि व्हाट इज दैट तिथि। तो वी कैन जस्ट put up and we can sync that knowledge easily because now we know what is the tithi. So this is example of the tithi, which tithi we can use for the vivaha. Then var, as Ambalika man explained about the var, what is a var, that what is a var and which var. So सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ये उत्तम है, मंगलवार, शनिवार और रविवार ये मध्यम है। उसके बाद में नक्षत्र, as we have seen about the nakshatra yesterday only, उसमें से रोहिणी, तीन हुई उत्तरा, रेवती, मृग, मूल, अनुराधा, मघा, हस्त व स्वाति ये सभी नक्षत्र विवाह के लिए शुभ है। आज हमने योग और करण देखे और योग में हमने 27 योगों में कौन से 9 योग अशुभ है वो भी देखे। तो जब हम उदाहरणार्थ विवाह मुहूर्त यहाँ लिए हैं तो अभी हमें योगों के बारे में पता है। We have know that what is a yoga और कौन सा हमें त्याज्य करना है और कौन सा हमें लेना है। So जब हम ये उदाहरणार्थ विवाह मुहूर्त अपने हमारे पास आता है तो as we see towards the विवाह मुहूर्त, तो योग में व्यतिपात, व्यघृति त्याज्य, परिक योग का पूर्वार्ध त्याज्य और विष्कुंभ, अतिगंड, शूल, व्याघात, वर्ज, गंड ये सभी अशुभ योग घटिका त्याज्य है। अब जब हम और करण देखें तो जब हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं कि ये योग का परिक योग पूर्वार्ध त्याज्य क्यों है, तो नाउ यू कम टू नो कि व्हाई इट इज अ त्याज्य, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल द योग ध्यान, उसमें क्यों त्याज्य होता है। उसके बाद में करण, विष्टि, भद्रा त्याज्य है। इट इज ऑल्सो एज आई एक्सप्लेन राइट नाउ कि करण विष्टि क्यों त्याज्य होता है, उसका मुख और उसका पुच्छ क्या है। तो फॉर उदाहरणार्थ जब हमें पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण जो अभी तक हमें एक्सप्लेन किया गया है, तो अब जब हम एक्सप्लेनेशन के साथ वी गॉट दैट मच नॉलेज अबाउट द पंचांग। सो व्हेनेवर द विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त या षोडश संस्कार की कोई भी मुहूर्त आता है, सो यू रिकलेक्ट इट, यू गॉट इट कि हाँ तिथि ये है, क्षय तिथि क्या है, वृद्धि तिथि क्या है, वार उत्तम कौन से है, मध्यम कौन से है, कौन से नक्षत्र है, योग ये वर्ज्य क्यों है, विष्टि या भद्राकरण त्याज्य क्या है। सो दिस इज द उदाहरण। सो टुडे वी हैव सीन व्हाट इज द कीवर्ड्स अबाउट द तिथि, नक्षत्र एंड द योग। वी हैव सीन द योग, वी हैव सीन द करण, स्थिर करण एंड चर करण। वी हैव सीन द भद्रा, हाउ भद्रा विल बी यूज्ड, how bhadra will be tajya and which part of the bhadra will be useful for the occasion or shubha, for a shubha performance कार्य। So this is what पंचांग के 5 अंग और उसके 2 लास्ट अंग योग और करण हमने आज देखे। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम जो आज हमने आपके सामने ये सब एक्सप्लेन किया, वो जो एक्सप्लेनेशन हमने किया है उस सभी का श्रेय मेरे गुरुवर्य माननीय पांडे सर को जाता है। और एक्सप्लेन करते वक्त अगर कहीं उणिव, कहीं लैक पॉइंट्स या कहीं गलती हुई है तो वो मेरी है। इसी तरह मैं फ्रॉम माय बॉटम ऑफ द माय हार्ट आई वांट टू थैंक टू माननीय मराठे सर because he has organized this meaningful, strong and pleasurable workshop our Bharatiya Kalganana, and she will give me the opportunity to talk here about the Panchangas, Anga, Yoga and the Karan. Thank you all. Hari Om. धन्यवाद। मैम, धन्यवाद महोदया, मैम आपने बहुत रात्रि अच्छी मैम। तरीके से योग एवं करण के बारे में जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काल गणना के आज के इस आहुति में योग और करण इन 2 विषयों की चर्चा की गई। मेरा मानना है कि यह जो काल गणना की चर्चा हम पिछले सप्ताह से कर रहे हैं,
उसका अंत अभी मुहूर्त, विवाह मुहूर्त देखने से राजसी जी ने किया। मुहूर्त क्या है, और यहीं से हम अपनी बात रखते हैं। गौरी स्रवः के तकपत्र भंगम आकृष्य हस्ते न ददन मुखाग्रे विघ्नम मुहूर्ता कलित द्वितीय दंत प्ररोहो हरतुद्दीपास्य। मुहूर्त का अर्थ है जो संपूर्ण विघ्नों को समाप्त करते हुए कार्य को सफलता की ओर अग्रसर कर दे, पूर्ण कर दे, यह मुहूर्त है। इस मुहूर्त को जानने के लिए तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, आपने इन विषयों को देखा। प्रतिदिन एक एक अंग के बारे में, मुझे याद है कि पहले दिन ही मैंने कहा था पंचांग का स्मरण मात्र करने से, श्रवण मात्र करने से पुण्य प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो परब्रह्म परमेश्वर विष्णु का ही स्वरूप है, और उस काल स्वरूप का स्मरण और उसका ज्ञान करना ही परम तत्व को जानना है। तो आज जो आपने योग इत्यादि जाना, तो उसमें आपने देखा कई शुभ योग हैं, कई अशुभ योग है। योग को यदि हम शाब्दिक अर्थों में लें तो प्लस करना, अर्थात धन करना, जोड़ना। तो क्या जोड़ा हमने? सूर्य और चंद्र की स्थिति को जोड़ दिया। जो एक काल निर्णय हुआ उसका नाम योग रखा। अब यह कितने प्रकार के है, क्योंकि सूर्य चंद्र की स्थितियां नक्षत्र में बदलते बदलते 27 प्रकार के योग आते हैं। इसलिए इन 27 योगों की चर्चा आज हुई। मैं उन नामों को नहीं लेता हूं, परंतु जिस तरह से वार क्रम में आपने देखा कि प्रत्येक वार की आवृत्ति आती है, उनकी होरा आती है, ठीक इसी तरह आचार्य वशिष्ठ कहते हैं कि योगस्य सप्तविंशांशो योगमानं भवेदिह एकस्मिन्नपि योगेपि सर्वे योगाः भवन्ति ही। अर्थात एक योग में भी सारे 27 योगों का क्रम आता है। ये क्यों बता रहा हूं कि अगर अशुभ योग आदि हैं तो हम उसमें शुभ योग को कैसे स्मरण करें और किस प्रकार कार्य करें। तो अत्यावश्यक होने पर एक योग में सभी योग आ रहे हैं तो विस्कुंभ, प्रीतिरायुष्मान, सौभाग्य, शोभनस तथा इत्यादि जो 27 योग है, उनमें से जो शुभ योग का समय आएगा तो यह कैसे आएगा? स्पष्ट चंद्रमा और स्पष्ट सूर्य की कला को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 800 कला का भाग देंगे। भाग देने के बाद आपको पिछली गत योग की संख्या आ जाएगी। अब वर्तमान योग जानने के लिए कि वर्तमान योग में कितना समय बीता, कितना बाकी है, यह गणित के त्रैराशिक से निकाल सकते हैं। इसमें क्या करेंगे? गत योग में चूंकि एक योग सामान्य घटात्मक 60 घटी है, 60 का गुना गति है, दोनों गति, दैनिक गति, उनको आपस में जोड़ करके उस गति से भाग दे देंगे तो गत घट्यादि वर्तमान योग का आ जाएगा। और अगर उनका ऐस्यमान निकालना है तो उसमें गति का 60 का गुणा करके गति का भाग देंगे तो ऐस्यमान आ जाएगा। दोनों से अर्थात जो वर्तमान योग है उसका गत और ऐस्य अर्थात संपूर्ण मान आ जाएगा। अब ये गणना कैसे करते हैं चर्चा किया उन्होंने, पुनः आवृत्ति करता हूं कि विस्कुंभादि योग गणना करने के लिए उस से सूर्य नक्षत्र तक गणना करना और जो संख्या आए, एक आचार्य वेद से इस तरह से गणना करते हैं। अगर स्पष्ट चंद्रमा सूर्य नहीं हो तो इस तरह से भी हम योगों का आकलन करते हैं। और श्रवण से चंद्रमा तक के नक्षत्र की गणना करना, इन दोनों को योग कर देना और योग करने के बाद फिर उसमें चूंकि योगों की संख्या 27 है तो 27 से भाग दे देंगे तो विस्कुंभादि योग प्राप्त हो जाएंगे। जो नंबर आएगा उस नंबर का योग होगा क्योंकि उसका क्रम निर्धारित है। अब यह जो योग की गणना, मान लीजिए
सूर्य पूर्वाषाढ़ा का है, चंद्रमा धनिष्ठा का है। हमने आज कल्पना किया तो पुष्य से पूर्वाषाढ़ा तक गिनेंगे, पुष्य अश्लेषा मघा इत्यादि, तो 13 संख्या आ गई। और श्रवण से धनिष्ठा तक गिनेंगे, श्रवण धनिष्ठा 2 आ गया। अब हमने 15 और 2 को जोड़ दिया, 13 और 2 को 15 हो गए। तो जो 15वां योग आएगा वो विस्कुंभादि योग हो जाएगा। अब मेरा मानना है कि योग जानना क्यों है? काल का विभाग तिथि के रूप में हो गया, उसी से काम चल जाता। नक्षत्र के रूप में हो गया, उसी से काम चल जाता। अब ये योग करण क्यों आया? तो प्रयोजन सिद्ध करते हैं कि वैवाहिके कर्मणि निश्चिंतयेता का जो शुभ कर्म है, जिससे हमारे दैनिक जीवन के संस्कार आदि कर्म है, उन सारे कर्मों को करते समय इस योग का चिंतन करना चाहिए। तो उसमें मुख्य एक दे दिया, वैवाहिके कर्मणि, क्योंकि जितने संस्कार जीवन में है उसमें विवाह संस्कार मुख्य है। तो उस काल में कहा इसका चिंतन करें। नोचेत अवाप्नोति सदैव दुखम, कहा अगर नहीं करता है तो वो दुखदायी होगा, कष्ट देने वाला होगा। तो कौन से योग का क्या त्याज्य है, क्या ग्रहण करना है, इस पर चर्चा हुई। अब प्रश्न एक और उठता है कि उन्होंने 2 योग बताए, एक विस्कुंभादि योग और एक आनंदादि योग। विस्कुंभादि योग तो 27 हो गए, आनंदादि योग 28 है। अर्थात विस्कुंभादि योग में अभिजित की गणना नहीं है, आनंदादि योग में अभिजित की गणना है। तो प्रश्न आएगा, कहां हम विस्कुंभादि योग के का विचार करें और किस विषय में हम आनंदादि योग लें? प्रश्न उपस्थित होगा ना। आनंद से अलग अलग योगों के नाम इन्होंने बताए, अब आनंदादि ले या विस्कुंभादि ले? कृपया आप अपना माइक बंद करें। तो कहा जो विस्कुंभादि योग है वो नित्य कर्म के लिए है, क्योंकि जीवन में कर्म नित्य कर्म। ये तो मुहूर्त बन गया अभी। तो जो नित्य कर्म है उसमें विस्कुंभ प्रीति आयुष्मान सौभाग्य सौवरस तथा इस प्रकार के योग की चर्चा करनी है। और जब नैमित्तिक कर्म हो तो निमित्त के लिए आचार्य कहते हैं कि आनंदादि जो 28 योग की संख्या है उसका प्रयोग करना चाहिए। इसमें कहीं मतभेद नहीं होना चाहिए, आपको संदेह नहीं होना चाहिए। कहा विस्कुंभादि ले तो नित्य और नैमित्तिक ये कर्म का भेद मैंने पहले दिन चर्चा की थी। और क्या है, कहा अगर फल के बारे में तो अभी बताया उन्होंने कि स्वनाम अपने नाम के अनुसार स्वनाम सदृश फलम विवेचन, उनके नाम के अनुसार उसका फल का विवेचन है। विरुद्ध योगे सुच आद्य पादा शुभेषु कार्येषु विवर्जनीया, एक सामान्य नियम आपको बताता हूं, उसमें है कहीं 2 घटी कहीं 4 घटी का नहीं, छोड़ दो, एक सामान्य नियम बना दो कि अगर विरुद्ध योग है, अशुभ योग है, तो उसका आद्य पाद विवर्जनीय, उसको त्याग देना चाहिए। अब इसमें 2 महत्वपूर्ण विषय है जो मैं आपके सामने रखता हूं। यह योग आकाशस्थ कैसे है, क्या है, गणित के रूप में इसकी स्थिति कैसी है, तो केवल 2 योगों से आपको इसकी उदाहरण देता हूं। सिद्धांत ग्रंथों में व्यतिपात और वैद्युतिपात ये जो 2 योग हैं इनका विशेष उल्लेख है पात के नाम से, इनको महापात कहते हैं। और महापात का जो काल संज्ञा दिया है वो इसलिए दिया है कि यह अग्नि स्वरूप है। क्या दिया, एक अयन गतौ स्याताम सूर्या चंद्र मशुर यदा तद मंडले क्रांति तुल्यो वैद्युता विधा। अभी कहते हैं कि एक अयन हो, अर्थात तो सूर्य चंद्र दोनों एक अयन में, उत्तरायण में या दक्षिणायन में हो, और क्रांति सामने हो, अर्थात उनकी क्रांति, उनका जो क्रांति एक खगोलीय अंशात्मक मान है, कहा दोनों की क्रांति। आपने कभी देखा होगा पंचांग, जैसे इस तरह से पंचांग दिखता है ना, ऐसे पंचांगों में उत्तराकांत क्रांति, दक्षिणाकांति
इस तरह से लिखा रहता है। तो कहा दोनों एक अयन में हो सूर्य चंद्र और उसकी क्रांति साम्य बराबर हो, और दोनों सूर्य चंद्र को जोड़ने के बाद 12 राशि का संबंध आता हो, तो वैधृति पात बनेगा, वैधृति योग बनेगा। ठीक है सर, अगर दोनों विपरीत अयन में हो और उनकी सूर्य चंद्र का योग 6 राशि होगा तो व्यतिपात योग होगा। देखिए 2 का उदाहरण हमने दिया, ऐसे विष्णुवादी सभी योगों के लिए निर्णय है। और यह उस काल में क्या होता है कि प्रवाह वायु के वेग से अग्नि उत्पन्न होती है, इन कारणों से इसे अशुभ फलदायक कहा गया। क्या करता है? अशुभ फल का नाश करता है। और व्यतिपात वैधृतिपात ये सारे मास में 2 बार ऐसी स्थिति आती है जब एक अयन में हो, विपरीत अयन में हो, उनका योग 12 राशि हो और उनका योग 6 राशि हो। यह भी आकाशस्थ में इसकी गणना की जा सकती है। अब सूर्य सिद्धांत में तो इसका स्वरूप भी बताया है। कहा यह कृष्ण वर्ण है, इसका शरीर कठिन है, लाल लाल नेत्र हैं, इसका पेट बहुत बड़ा है, यानी बहुत विकराल स्वरूप इसका बताया इस पात का। वैसे पात के नाम से राहु केतु भी जाने जाते हैं। तो अंधकार स्वरूप है और इसका जो मध्य काल में है वह शुभ कार्यों में वर्ज्य है। तो करना क्या है ऐसे काल में? करना क्या? तो कहा स्नान, दान, जप, श्राद्ध, इष्ट देवता की आराधना, होम, धर्म क्रियादि ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति तो निष्क्रिय नहीं रह सकता ना। तो इस काल में ये कार्य उन्होंने बनाया, क्योंकि सर्व शुभ कर्मसु वर्जयेता, जो शुभ कर्म है उनका वर्जन केवल करना है। अशुभ योगों में ये कर्म अर्थात शांति कर्म, स्नान, दान, जपादि अवश्य करने चाहिए। ठीक है, जो क्रांति साम्यता हमने कही, यदि आप खगोल के थोड़े छात्र हैं तो आपको पता चले विषुववृत्त और गोल संधि में क्रांति साम्यता होती है। इसके लिए थोड़ा आपको खगोल परिभाषाएं जाननी होगी, तो आप इसके गणितीय स्वरूप को जान सकते हैं। अभी आपने फलित और व्यवहारिक पंचांग में सामान्य दृष्टि समझा। अभी जो आनंदादि योग है इसकी गणना कैसे करें? का श्राद्ध अर्के मृगादिंदो इत्यादि, अर्थात रविवार को अश्विनी नक्षत्र से गिनकर, सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र से, मंगलवार को आश्लेषा नक्षत्र से, बुधवार को हस्त से, गुरुवार को अनुराधा से, शुक्रवार को उत्तराषाढ़ा से और शनिवार यदि है अर्थात ये वार के क्रम से तो शततारका नक्षत्र से इसकी गणना करेंगे। और नक्षत्र के तुल्य ही इसका भोग काल है। का आनंदादि योग कितना काल रहेगा? का जितने काल तक वह नक्षत्र रहेगा उतना ही काल इसका रहेगा। अच्छा, नक्षत्र आरंभ में वह योग प्रारंभ होगा, नक्षत्र समाप्ति में वह योग समाप्त होगा। योग के नाम पर अभी ये कुछ तो योग आपने जाना, विष्णुवादी और आनंदादि, लेकिन बहुत से योग होते हैं। जैसे 1-2 उदाहरण आपको तो रवि योग, सिद्ध योग, याई जयद योग, ऐसे अनेकों योग है, वारुणी योग, ये सारे योग पंचांग के कारण बनते हैं, लेकिन ये क्रम से बनते हैं। आनंदादि विष्णुवादी इसकी चर्चा इसलिए आज की गई, लेकिन जो विशेष योग बनते हैं उसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि वो अति आवश्यक है। क्योंकि मान लीजिए विष्णु आ गया और उस दिन रवि योग हो गया, तो क्या लेना, निर्णय कैसे करें? रवि योग का फल कहे या विष्णु को त्यागे? तो शास्त्र वचन कहता है अयोगे सुयोगोपि च स्यात् तदानीं अयोगम निहत्यैव सिद्धिं तनोति। अगर अयोग्य और सुयोग दोनों एक दिन आ जाए तो जो सुयोग है वह अयोग्य के फल का नाश करता है और सुयोग के फल को प्रदान करता है। तो विष्णु योग आ गया और दूसरी तरफ रवि योग आ गया, सिद्ध योग आ गया, तो रवि योग सिद्ध योग का फल होगा, विष्णु की दुष्फल की समाप्ति हो जाएगी। तो मुहूर्त देखते समय इसका भी निर्णय करना चाहिए। अब ये 2 मिनट करण के बारे में चलते, ये तो योगों के बारे में 2-3 बातें थी कि अगर विष्णु आ गया, रवि योग आ गया, सिद्ध योग, तो क्या लें। दूसरा करण, करण में किन करणों में क्या क्या कार्य है इस पर चर्चा हो चुकी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है करण है वह भद्राकरण है। उसके बारे में कह रहे हैं कि यह भद्राकरण किस कार्यों में है, भद्रा का नाम क्या है। इनके नामों में और इनके विचार विमर्श में आचार्यों ने बहुत समय लगाया है।
और बहुत परिश्रम किया है कि यह चर कर्ण और स्थिर कर्ण में सबसे महत्वपूर्ण कर्ण भद्रा है। इसमें पौष्टिक, स्थिर, शुभानी इत्यादि करके सभी कर्णों के कर्म बताए गए हैं। तो भद्रा के लिए विशिष्टाख्योयम महादोष, यह विशेष योग है जो महादोष उत्पन्न करता है। तदानीम कृत विनश्यति ऐसे इत्यादि। लेकिन वार के नाम पर सोमे शुक्रे च कल्याणी सनौ चैव च वृश्चिके गुरु पुण्यवती गेया चा अन्य वारेषु भद्रिका, अर्थात रविवार, मंगलवार, बुधवार को इसको भद्रिका इस नाम से भी भद्रा जानी जाती है। भद्रा के मुख पक्ष के बारे में विचार हुआ, परंतु यह भद्रा स्वर्ग में, मृत्युलोक में, पाताल लोक में ऐसे भी विभाजन है। तो जब मृत्युलोक में हो तो ही भद्रा त्याज्य है, अर्थात मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक का स्वर्ग में रहती है। कर्क, सिंह, कुंभ और मीन का यदि होगा तो ही मृत्युलोक में होगी और वही भद्रा त्याज्य होगा। ये राशि किसकी है? चंद्रमा की। कन्या, तुला, धनु और मकर राशि का चंद्रमा होगा तो यह पाताल लोक। इसमें भी कई आचार्यों के थोड़े मतांतर हैं, वो आज चर्चा मैं नहीं करूंगा। कई जगह तो पक्ष भेद से, कृष्ण पक्ष में इसको सर्पिणी और शुक्ल पक्ष में इसको वृश्चिकी भी कहते हैं। तो सर्पिणी का मुख और वृश्चिकी का पुक्ष ये त्याज्य है, ऐसे भी आज शास्त्र वचन मिलता है। तो कहा इसकी उत्पत्ति कब हुई? देखिए, हम सभी कहते हैं सृष्टि हुई तो वास्तविक उत्पत्ति जिस प्रकार से, उसी तरह देव दानव के युद्धों में जब देवता हारने लगे, आपको पता है जब सभी हार जाते हैं तो कहां जाते हैं? विष्णु के पास जाते हैं, और विष्णु से भी कुछ नहीं होता है तो वो सदल बल भगवान शिव के शरण में चले जाते हैं। तो सारे लोग शिव के पास गए, कहा आप दानव तो हम पर विजय प्राप्त कर लेगा, अब तो कुछ करिए। उन्होंने अपना नेत्र खोला और भद्रिका को उत्पन्न किया। और यह कैसी है? यह विष्णु अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं जब किसी सज्जनों पर अत्याचार होता, तो देवताओं पर अत्याचार होने के कारण शिव क्रोधित हुए और विकराल देव सहायता के लिए भद्रिका का निर्माण किया। वह तब से यह भद्रा काल बाधा, बंधन, नष्ट आदि के कार्य में प्रयुक्त होता है। इसका फल क्या है? न कुर्यान मंगलम विष्ट्याम, विष्टि में भद्रा में कभी मंगल कार्य नहीं करें। सामान्य वाक्य आपको बताओ जिससे निर्णय करने में आपको सुविधा हो। जीवितार्थी कदाचन, यदि आप जीवित रहना चाहते हैं, कर्म को जीवित रखना चाहते हैं तो भद्रा में मंगल कार्य नहीं करें। कुर्यान नज्ञस्तदा क्षिप्रम तत्सर्वम नासताम ब्रज, अगर आपने कर दिया तो शीघ्रता से वह कार्य और व्यक्ति विशेष सब नष्ट होने की संभावना रहती है। तो क्या करें? निष्क्रिय बैठे? नहीं, बहुत कार्य दिया है। उस कार्य में कुछ कार्य आपको गिना देता हूं। भद्रा से ज्योतिषी लोग बहुत डराते हैं, मैं कहता हूं डरिए नहीं, एकदम उसके साथ रहिए। क्या क्या कार्य करना है इसको नोट करके रखिए। जब आए भद्रा तो यही कार्य करिए। युद्धे भूपति दर्शने, राजा से मिलने जाना हो तो भद्रा देखिए, अधिकारी से मिलने जाना हो तो भद्रा देखिए, युद्ध न्यायालय में जाना हो तो भद्रा देखिए। भय वने घाते चपाठे हटे हठे, कैकेयी ने हठ में भी भद्रा देखा था, यानी हठ करना है, मुझे अपने पिता से कुछ हट करके लेना है तो भद्रा में जाना है। पाठ करके उसको सिद्ध करना है, अध्ययन करके तो भद्रा में जाना है। वैद्य स्वगामन, वैद्य का आगमन करना है या डॉक्टर के पास जाना है तो भी भद्रा में जाना है। जल प्रतरणे, तैरना सीखना है। शस्त्रों तथा उच्चाट में शस्त्र सीखना है, और कहीं से भागना है, किसी को भगाना है तो भी भद्रा में कार्य प्रारंभ करिए। सिंहोस्त्रे, सिंह, ऊंट, गधा, हाथी, घोड़ा, इनको बस में करना है, पालना है तो भी भद्रा में प्रारंभ करें। स्त्री सेवा ऋतुमर्दने च सकटे भद्रा सदा गृह्यते, एक बहुत महत्वपूर्ण है। सकटे, गाड़ी आपको खरीदनी है ना, लोग कहते भद्रा त्याग दीजिए, नहीं, गाड़ी को भद्रा में ही लाओ और चलाओ। सकटे शास्त्र वचन है, भद्रा में उसे ले आना है और चलाना है। ठीक है, मैंने 5 मिनट थोड़ा समय ज्यादा लिया, कुछ विषय अतिरिक्त थे जिससे ये लगा कि अभी आपके साथ मुझे